नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं हेरिटेज एकेडमी कोटद्वार में। ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत स्कूल है, काफ़ी अच्छी पढ़ाई है। और अभी 17 तारीख को एक यहाँ पर साइकिल रैली है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कण्वा नगरी लाइव में। और दोस्तों, आज मैं आया हूँ हेरिटेज स्कूल में, यहाँ पर जो कि 2011 से इस्टेब्लिश है, CBSE एफिलेटेड है ये स्कूल। और इस बार जो है 17 तारीख को एक यहाँ पर साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। और उसका उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से हम अपने कोटद्वार को साफ़ और सुथरा रख सकते हैं। तो उसके लिए ये अवेयरनेस रैली है ये। कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं स्कूल के, आइए बच्चों से बात कर लेंगे और जान लेंगे स्कूल के बारे में भी थोड़ा सा, क्योंकि 2011 से और बताया जा रहा है कि बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। शिक्षा के साथ साथ बच्चों का जो है ओवरऑल डेवलप किया जाता है, कि चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हों, या पढ़ाई के साथ साथ और दूसरी चीज़ें। अब जिस प्रकार से साइकिल रैली का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, बच्चों से बात करेंगे। 2 बच्चे हमारे साथ हैं स्कूल के। क्या नाम हुआ बेटे आपका? Myself Anushka, अनुष्का। and I'm the head girl of the school. अच्छा, हेड गर्ल हैं आप? I'm the head girl of the school, and as I think all of them know that we are having a cycle rally on 17, and this rally is actually indispensable without students and the members of the Kotdwar. And why is this indispensable without students? Because in this age we have a lot of energy, we have a lot of enthusiasm, curiosities, and why not to use this energy in something good to make this world beautiful place. So please do join us for this rally. The theme of the rally is I love Kotdwar, and the motive is safe, secure and clean city. So please do join us. अच्छा, जैसा आपने कहा कि हेड गर्ल हैं आप, तो हेड गर्ल के लिए क्या स्कूल, कैसे हेड गर्ल चूज़ किया जाता है, कैसे क्या? I think the leadership quality, person should have leadership quality. Leadership quality doesn't mean to dictate. I mean the dictatorship. I mean, it is how you hold the children, how you put them first, and because a leader is who put their people first and who lead them and make the goal successful. So these kind of things are observed from the starting, like the participation of that person, obviously not only the academics but also the sports activities, the co-curricular activities, and the enthusiasm, how much he is interacting with all the people, how he or she leading the people. So all of these things are noticed, and I think all teachers are very good in doing that stuff. तो देखिए, अनुष्का ने जैसा कहा है कि हेड गर्ल्स के लिए लीडरशिप क्वालिटी, और मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आपके अंदर पूरी लीडरशिप क्वालिटी है। अच्छा अनुष्का, मुझे ये बताइए कि आगे भविष्य क्या आप बनना चाह रही हैं, क्या I want to become a psychologist. See, there are so many stigmas and taboos about psychology. First of all, I want to clear that psychology is not bhoot pret and all that stuff. Psychology is actually a mind. Mind have a structure. It's not actually brain, but it have a structure. And there is a within 10 years there will be a lot of boost in this field. And I want to inspire the kids of Kotdwar to please do study psychology. Please come out of this taboo. You should, you should inspire, you should tell your parents too that it's not bhoot pret or some kind of oja, all things. Yeah, oja, all these things. Please do understand the mind. It is very interesting. Let me be very honest with this, with it, that it's very interesting. I just love psychology. Just love how mind works, and I just love how people react, people's emotions, and how their behaviors. It's very interesting. See, when you are a psychologist in a clinical psychology, there is a rule in psychology that everything of your client should be confidential, right? So think, someday a client comes to you and he say, I want to murder your mom. Think, and the first rule of psychology is you can't tell anything about your client. So what you will, so it is so adventurous, it's so interesting. I just love.
I just love it. अच्छा, जैसे मैंने बहुत सारे स्कूलों में मैं जाता हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात होती है। फर्स्ट टाइम मुझे कोई एक ऐसा स्टूडेंट मिला जो साइकोलॉजिस्ट में जाना चाह रहा है, मनोवैज्ञानिक बनना चाह रहा है। अच्छा, इस फील्ड में मुझे ये बताइए आप, क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं जॉब या इस प्रकार से? क्योंकि हर स्टूडेंट यही चाहता है, पढ़ाई भी कर रहा है तो वो चाहता है कि मुझे बड़ा होकर ये बनना है और इस क्षेत्र में ये अपॉर्चुनिटीज़ है। इसमें किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी है? I think where is mind, there is psychology. I think that. So if you go in business, there is psychology. Of course, you need something. Of course, you need to, you need to encourage. So there is psychology. If you want to do counseling, there is psychology. In educational field, there is psychology. Even when you do B.Ed degree, the psychology is taught, right? If you are going for the disorder field, that is a different kind of psychology. That is all psychology. If you are doing sports, then there is sports psychology. Obviously we have that sports psychology chapter in our physical education. So psychology is everywhere. Even if somebody is moving his head like this is psychology. If somebody is biting his nails, this is psychology. This is a kind of disorder. I will say this is a kind of compulsive disorder. A lot of children shake their legs, that is psychology, because they want to cope with the anxiety, so they shake their leg, which is very common in this age. Emotions is another psychology, which is part of psychology, right? Emotions are psychology, humans are psychology. So I want to say psychology is must, and I think everybody should have this knowledge of basic knowledge about the psychology. If I talk about opportunities, you can do counseling. Yeah, you can go for business psychology. The main and the most crucial topic nowadays is forensic psychology, which you must know that deals with the criminal, how the criminal mind works. That is a forensic psychology. Then we have the field in which I want to go, that is the clinical part, which is all about disorders, therapies which we provide, because there are a lot of people, because due to COVID also, there are a lot of people who are struggling with the disorders part. They are lonely for no reason. They are lonely, they suppress the emotions, and they do not know how the life philosophy works. So I think that's where the psychology is indispensable. And तो दोस्तों, ये हैं अनुष्का, और किस प्रकार से उन्होंने डिफ़ाइन किया है साइकोलॉजी के बारे में। और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं शायद इनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा ली होगी, क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारे स्कूलों में मैं जाता हूँ, बहुत सारे छात्रों से बात करता हूँ, ज़्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर या IAS इस फील्ड में जाना चाहते हैं। स्पोर्ट्स में भी आजकल बच्चे हैं, लेकिन साइकोलॉजी में फ़र्स्ट टाइम इतना गहन अध्ययन मुझे भी जानने को मिला है। तो शुभकामनाएँ हैं बेटे, बेस्ट विशेज़ हैं, आप जो चाह रही हैं वो। एक और स्टूडेंट हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। जय हिंद सर। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। 12वीं में पढ़ रहे हैं। स्कूल कैसा है? ये स्कूल बहुत अच्छा है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी इस 17 तारीख को हमारा स्कूल एक साइकिल रैली आयोजित करने वाला है। इस साइकिल रैली में हमारे पास लगभग 300 साइकिलें हैं, और इस साइकिल रैली का अहम मकसद यही है कि हम इस कोटद्वार को एक काफ़ी ज़्यादा साफ़, स्वच्छ और सुरक्षा से लैस जगह बनाएं। हमारे कोटद्वार को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, हमें कोटद्वार से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि कोटद्वार एक काफ़ी अच्छा डेवलपिंग स्टेट है, और कोटद्वार को अपलिफ्ट करने में काफ़ी ज़्यादा इजी टेक्निक्स यूज़ हो सकती हैं, जो कि हमारा स्कूल करने वाला है इस 17 तारीख को इस साइकिल रैली के द्वारा। तो 17 तारीख को एक साइकिल रैली है, और उसका उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से हम कोटद्वार को साफ़ और सुरक्षित रख सकते हैं। और एक प्रयास है इस स्कूल का, और हम सभी को, इस स्कूल का नहीं, हम सभी का भी प्रयास होना चाहिए कि हम अपने कोटद्वार हमारा एक छोटा सा शहर है, बहुत गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। चाहे तो हम इसको सरकार के ही भरोसे हमें नहीं रहना है, हमें खुद से भी प्रयास करते रहना चाहिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपके फ्यूचर प्लानिंग क्या है, गोल क्या है आपके? मैं एक वकील बनना चाहता हूँ फ्यूचर में। वकील? जी। अच्छा, वकील क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है जो मेरे फादर भी फॉलो करते हुए आ रहे हैं पहले से। फादर आपके वकील हैं? जी, माय फादर इज़ एन एडवोकेट। अच्छा, इज़ अ सिविल एडवोकेट। अच्छा, आप भी मतलब लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं? जी, है ना। मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है वकील होना, क्योंकि ये लोगों को डील कराता है काफ़ी सारे केस स्टडीज़ से, और लोगों को काफ़ी ज़्यादा जोड़ता है देखने के लिए कि
क्या हो रहा है इस समाज में और किस तरह से आप लोगों को उनको न्याय दिलाओगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं, काफ़ी टाइप के केसेस मिलते हैं आपको। एक वकील। हॉबीज़ क्या हैं आपकी हॉबीज़? मेरी हॉबीज़ राइटिंग है, राइटिंग। मैं किस पोएम्स प्रकार लिखता की हूँ। राइटिंग करते हैं? पोएम्स? हाँ, कोई मैं पोएम्स, अगर पोएम आपको आती हो तो सुना दीजिए हमारे दर्शकों को भी। मैं देश के लिए एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा, कुछ ही पंक्तियों की है, कुछ ही लाइनों की है। छोटी छोटी बातों पे जो होती है लड़ाइयाँ, छोटी छोटी बातों पे हुई सुनी है कलाइयाँ, छोटे छोटे बच्चों ने गवाया अपने माँ बाप को, क्या है कोई जवाब? हाँ बोलो ना, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, हम मेरी इन बातों का क्या है कोई हिसाब उन गुजरी हुई सांसों का। ऐसी ही काफ़ी सारी कविताएं हैं मेरे पास। बहुत बढ़िया। तो ठीक है, साइकिल रैली के लिए भी शुभकामनाएं हैं बेटे आपको भी। और आप जो कुछ आप चाह रहे हैं वो फुलफ़िल हो आपकी, और आप समाज के लिए भी, अपने लिए भी, साथ ही साथ समाज को भी उसका फ़ायदा पहुंचाएंगे। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। तो हमारे साथ हैं कर्नल कुंवर अजय सिंह जी, जो कि स्कूल से ही हैं, और सर से पूरी जानकारी भी स्कूल के विषय में ले लेंगे, और जिस प्रकार से एक साइकिल रैली है उसके बारे में भी बात करेंगे। और अभी बच्चों से हमने बात की है और बहुत सुंदर बातें उन्होंने की है, और जिस प्रकार से मुझे एक पहली बार एक इस प्रकार का स्टूडेंट मिला है कि जो साइकोलॉजी में भविष्य बनाना चाह रहा है, और साइकोलॉजी के बारे में कितना डीपली उन्होंने बताया, ये तो इससे पता चल रहा है कि स्कूल किस प्रकार की शिक्षा इन बच्चों को दे रहा है। सर से बात कर लेंगे। सर नमस्कार। सर गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? ऑल वेरी, बिल्कुल ठीक। सर थोड़ा सा स्कूल के बारे में सबसे पहले आप बताइए। देखिए, हेरिटेज एकेडमी 2011 में ब्रिगेडियर डेस्मंड हेड महावीर चक्रा, जो कि बैटल ऑफ डोगराई लाहौर में जो इंडिया पहुंचा था 1965 वॉर, उनके द्वारा हमारे साथ मिल कर के खोला गया। और अभी स्कूल को हो गए हैं, दिस इज़ 13th ईयर रनिंग, और स्कूल 12वीं क्लास तक है, CBSE है। खसूसियत ये है कि ये इस पूरे क्षेत्र का अकेला बोर्डिंग स्कूल है, जिसमें इंडिया के हर जगह से और विदेशी भी बच्चे हमारे साथ अध्ययन कर रहे हैं। सर एक तो आपने खासियत ये बता दी कि बोर्डिंग स्कूल है, कोटद्वार का पहला शायद बोर्डिंग स्कूल है, और स्कूल बहुत सारे हैं, और क्या डिफरेंट क्वालिटीज़ इस स्कूल की है जो कि जो पेरेंट्स जो हमारा वीडियो देख रहे हैं वो जान सके स्कूल के बारे में? देखिए, हमारा स्कूल, पहली बात तो इट इज़ वेरी चाइल्ड सेंट्रिक, यानी कि देखिए जो यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है बच्चे के ऊपर दी जाती है। लड़कपन में बच्चों को डांटना, फटकारना, वो सब हम लोग नहीं करते। बच्चों को मोटिवेशन से मोटिवेट करके उनका डिसिप्लिन वगैरह, रख रखाव वगैरह हम उनसे बच्चों के साथ करवाते हैं। आप देखिए, हम लोग गार्डन में खड़े हुए हैं, हमारे स्कूल का कोई भी बच्चा, चाहे नर्सरी का हो चाहे 12th का हो, ना कोई फूलों के साथ छेड़छाड़ करता है, बल्कि आ करके जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये आप पौधा मेरे राइट में देख रहे हैं, ये भी एक बालिका ने लगाया है। तो हम लोग इस तरह से प्रोत्साहन करते हैं। एंड हमारी जो यहाँ पे जो सोच है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, देखिए अभी पिछले साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, जिसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बहुत बड़ा दर्जा मिला है कि जो फॉर्मेटिव ईयर्स है बच्चों को, उनको करके दिखा करके तब पढ़ाना चाहिए। हेरिटेज एकेडमी में प्राउडली से बोलता हूँ कि ये 2011 में जिस वर्ष से खुला था, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को ही लेकर के आगे आया है, जिससे पेरेंट्स के साथ काफ़ी अच्छा सेटिस्फैक्शन है। जो बच्चों के जो नाजुक उम्र में साल गुजरते हैं, जहाँ पे लड़कपन होता है बच्चों को, तो उससे रिटेंशन मेमोरी में बहुत ज़्यादा असर मिलता है। अगर हम केवल क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड को लेकर के पढ़ाएं तो बच्चा उसमें बोर हो जाता है। बाहर निकाल करके उन्हें आप पर्यावरण के बारे में बताइए, आप उन्हें साइंस सिखा सकते हैं। आप एक क्या कहते हैं, टैंक दे दीजिए वाटर का, उसका एरिया का कैलकुलेट करने के लिए दे दीजिए। दैट इज़ अ डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रेनिंग। उसी में आप पानी भरना चालू कर दीजिए, किस फ्लो से पानी आ रहा है, क्या कितनी वॉल्यूम है, कितना समय लगेगा भरने में। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रोजेक्ट हम बच्चों से कराते रहते हैं। सर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ आपके स्कूल में लगातार होती रहती है। अभी 17 दिसंबर को एक कार्यक्रम आपके स्कूल की तरफ से किया जा रहा है, उस कार्यक्रम के बारे में भी बताइए सर। देखिए, बच्चों का, किसी भी स्कूल का मेन एम क्या रहता है कि बच्चों को एकेडमिकली ओरिएंट करे, ताकि वो अपने डिग्री से, सर्टिफिकेशन से, बोर्ड के रिज़ल्ट से अच्छी जगह दाखिला पाए, अच्छा भविष्य बनाए। एक चीज़ को हम नज़रअंदाज कर देते हैं,
वो है एक बच्चे को, देखिए ऐसा नहीं है कि मनुष्य जब पूरा वयस्क हो जाएगा तभी उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आए। इन चीज़ों के बारे में स्कूल से सोशल एनवायरनमेंट, सोशल मैनरिज्म, सोशल डिसिप्लिन में लाना बहुत ज़रूरी है। आजकल के सारे चाहे वो कॉलेजेस हों, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो नॉर्मल समाज की कोई सी भी क्या कहते हैं विंग हो, तो हमारे स्कूल में बच्चों को सोशल ओरिएंटेशन ज़्यादा करते हैं। हमारी सोच ये है कि कोटद्वारा जो है इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड क्या कहते हैं टाउन है, और इसका इतिहास भी बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ भरत नगरी है, जैसा आप सब जानते हैं। हमारे यहाँ श्री सिद्धवली जी हैं, मतलब जो वर्ल्ड रिनाउंड क्या कहते हैं एक मंदिर माना जाता है। हर धर्म का आदमी आता है, हर जगह का आदमी आता है, अपनी परेशानियां लेकर के और सुखियाँ लेकर के वापस जाता है। यहाँ पे एक कैथीड्रल खुला है जो कि ऑफ लेट उसकी भी काफ़ी चर्चा है, ये एशिया में सबसे बड़ा है। तो हमारे पास कोटद्वार में बहुत ज़्यादा, जिसे देखा जाए, स्थानीय जमा पूंजी है, बहुत हैं। स्थानीय जमा पूंजी है हमारे पास एनवायरनमेंट है। आप कोटद्वार में खड़े हैं, आपके अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो जाएंगे तो आपके बाएं में आ जाएगा राजा जी नेशनल पार्क, आपके दाहिने में आ जाएगा क्या कहते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप कॉरिडोर फॉरेस्ट में खड़े हुए हैं। जानवरों का इतना ज़्यादा आवागमन है। एक तो हम इसे अभिशाप के रूप में देखते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा जानवर हो गए, हमारे को मुश्किलें हो रही हैं। दूसरा क्या है, इट इज़ अ परफेक्ट प्लेस कि इसमें टूरिज़्म भी डेवलप करा जा सकता है, और अभी हो रही हैं। कई सरकार ने कई इसमें कदम उठाए हैं, दो तो वेरी गुड। बट कुछ प्रयास हम लोगों का भी है कि कोई अगर व्यक्ति या कोई बाहर से आदमी या कोई पार्टी कोटद्वार में आए तो कोटद्वार में एक थोड़ा सा हमें ड्रॉबैक दिखाई देता है। डिस्पाइट सरकार की बहुत चाहने से और बहुत कोशिशें करने के बावजूद भी इसमें क्या है कि गंदगी वगैरह उतनी ज़्यादा, लोग उसमें कूड़ा कचरा, इसका जो मैनेजमेंट है इसमें हम नागरिक लोग थोड़े से कमज़ोर हैं। हमारी पहुंच पहल ये है, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम लोग 17 तारीख को बच्चों को मोटिवेट करके क्या कहते हैं एक साइकिल रैली का हमने आयोजन किया है, जिसमें कि 8 से 10 किलोमीटर साइकिल बच्चे चलाएंगे। एंड साइकिल का रैली का मेन मुद्दा क्या है कि जो हमारे यहाँ के कोटद्वार की जनता है उनको सेंसिटाइज़ करना कि भाई हमें क्लीन कोटद्वारा, सेफ़ कोटद्वारा, आजकल सेफ्टी का भी इशू बन गया है। रैश ड्राइविंग, विदाउट हेलमेट ड्राइविंग, ऑल्सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ लिटिल बिट ऑफ ड्रग्स एंड ऑल। जो मतलब स्टेट एजेंसीज़ तो अपना काम कर रही हैं, हम नागरिकों को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। तो ये एक रैली हम लोग निकाल रहे हैं जो कि क्या कहते हैं 8 बजे 17 तारीख को माल्य विद्यान से चालू होगी। हमने अपने पेरेंट्स को भी और कुछ एक अन्य लोग हैं जो भी जुड़ना चाहे इसमें, उनको बोला कि भाई आप आइए, जुड़िए। कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ये हेरिटेज की अकेले की धरोहर नहीं है। ये देखिए, हम इस वजह से इस चीज़ को यहाँ पे फील्ड कर रहे हैं इस आइडिया को कि हमारा तो जन्म स्थान ही यही है। वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फैमिली ऑफ कोटद्वार। हम जिस स्कूल में खड़े हैं ये धरोहर है ब्रिगेडियर डेस्मंड हेड और बैरिस्टर मुकंदी लाल की, जिन्होंने हमेशा समाज के लिए काम किया है। हमारी भी सोच ये है कि हमारे जो बच्चे जो इनके नाम से जुड़े हुए हैं वो भी अपने समाज में एक स्थान बनाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। तो ये साइकिल रैली का आयोजन हुआ है 8 बजे से, और इसका समापन फिर माननीय जो इसका फ्लैग ऑफ होगा उसमें डीएम साहब ने अपनी सहमति दी है आने के लिए। ही इज़ अ वेरी लर्नड मैन। और हमारे साथ ग्रीन वेव्स करके एक संस्था है, ग्रीन वेव्स उत्तराखंड, तो वो हमारे को सपोर्ट कर रही है। वो भी हमारे साथ इसको क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज़ करने में मदद कर रहे हैं। डीएम साहब ही इज़ अ वेरी वेरी डायनामिक लीडर, यंग लीडर। तो उन्होंने कहा बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए मैं इसे फ्लैग ऑफ करूँगा। हम उनके आभारी हैं। और इसका समापन जो है 10:30 बजे स्कूल के ही प्रांगण में होगा। शुरुआत है माल्य विद्यान से और इसका फिनिश है स्कूल के एरिया में। वहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग फिर आभारी हैं हमारी स्पीकर मैडम श्रीमती ऋतु भूषण खंडूरी जी का। उन्होंने अपनी क्या कहते हैं सहमति हमें बताई है कि वो आकर के बच्चों का, पेरेंट्स का, पार्टिसिपेशंस का एक तरह से मनोबल बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ हमारी एक और चीज़ है, देखिए कोटद्वार और गढ़वाल जो है इट इज़ फेमस फॉर स्पोर्ट्स। हमने एक मुद्दा और जोड़ा इसमें कि हमारे कोटद्वार के कई पुराने क्या कहते हैं कोचेज़ हैं,
कई सामाजिक मुद्दों वाले लोग हैं, एनवायरनमेंट में जिन्होंने काम किया, एजुकेशन में काम किया, तो जिनको नेशनल तरफ से एक्नॉलेजमेंट मिला है, नेशनल क्या कहते हैं उनको मेडल वगैरह मिला है या भारतीय सरकार से द्वारा उन्हें सम्मानित किया है, तो ऐसे कुछ एक नाम हम लोग ढूंढ रहे हैं। अगर आपको भी कोई नाम पता हो तो हमें बताएं। हमने क्या कहते हैं ऐसे लोगों को भी इसमें सम्मानित करने के लिए एक फंक्शन 10:30 बजे स्कूल के ही प्रांगण में रखा है, जिसकी अध्यक्षता स्पीकर मैडम हमारी एमएलए श्रीमती ऋतु भूषण खंडूरी जी करेंगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपको कहा कि 17 दिसंबर को साइकिल रैली है और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से हम अपने कोटद्वार को साफ़ और सुथरा रख सकते हैं और वो अवेयरनेस फैलानी है। साथ ही साथ जो नेशनल जितनी भी चैम्पियनशिप है, अगर उसमें पार्टिसिपेट किया है या विनर हैं, तो उनको भी सम्मानित करने का एक अवसर स्कूल प्रशासन दे रहा है। और मैं सर का इसमें नंबर मेंशन कर दूंगा। आपको कोई भी क्वारी, कोई जानकारी चाहिए इस पूरे कार्यक्रम से संबंधित, तो आप सर से फ़ोन से बात कर सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, हमारे डायरेक्टर सर हैं कर्नल SP वर्मा, स्पोर्ट्स से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो चलते चलते सर से भी बात कर लेंगे, SP वर्मा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर? आप सबका स्वागत है। मैं हेरिटेज स्कूल में पिछले 2 साल से डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ और मैंने कोटद्वार को जो देखा है पिछले 2 साल में, एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत क्षेत्र है ये उत्तराखंड का, जो यूपी से बिल्कुल सटा हुआ है और पहाड़ों की छत्र छाया में जो प्रांगण है उत्तराखंड का, ये कोटद्वार। और श्री सिद्धबली जी के यहाँ सिद्धपीठ से ये काफ़ी प्रचलित और आसपास के इलाके में काफ़ी इसकी जागरूकता है। लोग आते हैं, ख़ासतौर पे इतवार को सिद्धबली जी के दर्शन करने बहुत लोग आते हैं। मेरा सिर्फ एक ही आप सभी कोटद्वार वासियों से अनुरोध है कि इस शहर को सुंदर बनाएं। नदियाँ इतनी हैं, आबो हवा इतनी साफ़ सुथरी है। मैं हालांकि NCR से बिलोंग करता हूँ, लेकिन यहाँ की मुझे आबो हवा इतनी अच्छी लगती है कि मैं वापस वहाँ नहीं जाना चाहता। मैं वहाँ से भाग के आ जाता हूँ और यहाँ पे बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी हवा। मेरे पिताजी माताजी भी मेरे साथ ही रहते हैं, जो कि 90 वर्ष से ऊपर के हैं। उनको भी ये क्षेत्र बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा इस शहर के वासियों से यही सुझाव है और यही रिक्वेस्ट है कि आसपास गंदगी ना फैलाएं। आपके यहाँ कूड़ा लेने गाड़ी आती है, उनको डालें। नदियों में गंदगी ना फैलाएं। मैंने देखा नदियाँ बहुत गंदी हो रही हैं हमारी, जिसके कारण पिछले दिनों हमें बहुत सारा पानी हमारे घरों में घुस गया, ख़ास तौर पे गिवाई और खो के आसपास के इलाकों में। तो ये चीज़ें हैं जो हमें जागरूकता लानी है और इसी के लिए हमने एक एतवार को 17 दिसंबर को रविवार को एक साइकिल रैली पूरे जागरूकता अभियान के तौर पे पहली बार कोटद्वार में हो रही है और वो हेरिटेज स्कूल की तरफ से हम कर रहे हैं। इसमें हमें DM साहब डॉक्टर आशीष चौहान का संरक्षण मिला है और यहाँ की विधायिका स्पीकर मैडम मिसेस ऋतु भूषण खंडूरी जी ने भी हमें अपनी सहमति जताई है। तो मैं आप सब से आह्वान करता हूँ कि आप सब भी इससे जुड़ें और एक ये मिशन सक्सेसफुल हो। आई लव कोटद्वार साफ़ सुथरा हो और किसी भी इंसिडेंट फ्री हो। थैंक यू। तो दोस्तों 17 दिसंबर को आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उम्र की कोई सीमा नहीं है इसमें। आप जेंट्स हों, फीमेल हों, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको मैं फ़ोन नंबर मेंशन कर दूंगा, आप बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से आयोजन ये होना है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।